A very warm welcome. You're watching Breaking on CNN News 18 with me, Akanksha Swaroop. We dive into the segment with big breaking inputs coming in on the Aam Aadmi Party. Remember, the Aam Aadmi Party leader Kailash Gehlot was to be questioned by the Enforcement Directorate, and the latest we are learning is that he has just left the ED office after his questioning took place. We all know that Kailash Gehlot has been the Home Minister in Delhi. For more details, in fact, let's also listen into what Kailash Gehlot had to say as he was leaving the Enforcement Directorate office. Yeah, I was part of the GM. इसमें तो कोई doubt नहीं है. तो probably because I was part of the GM इसीलिए वो आवाज़ बिल्कुल मेरे नाम पे allotted है. लेकिन मैं आज भी और पहले भी अपने ही जो मेरा प्राइवेट रेजिडेंस है वसंत कुंज जी, मैं वहाँ पे रह रहा हूँ. सवाल क्या थे वो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता क्योंकि वो सारी कॉन्फिडेंशियल प्रोसीडिंग्स हैं. ये सेकंड समन था. पहला समन जो है वो जब असेंबली में बजट सेशन चल रहा था उस टाइम आया था, लगभग मेरे ख्याल से 1 महीना पहले. तो मैंने यही कह के समय मांगा था कि चूंकि अभी असेंबली प्रोसीडिंग चल रही है और बजट का सेशन चल रहा है, इसलिए एज ए मिनिस्टर क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो एक मिनिस्टर को जवाब देने पड़ते हैं असेंबली प्रोसीडिंग में, तो वो कह के मैंने समय मांगा था. All right, for more details, let's quickly go across to Nikhil, who's been tracking all the latest updates for us. He's currently stationed outside the Enforcement Directorate office. Nikhil, as Kailash Gehlot just highlighted, this has been the second summon. Of course, he's not really discussed in detail with regards to what the line of questioning was. But do share with us what have been the allegations against Gehlot in the charge sheet. Well, it's less about the... He was a part of the GOM, which is the group of ministers, and that was the group of ministers which actually drafted and formed the now scrapped excise policy, which was implemented in the year 2021 and 2022. And there is another allegation as well attached to Kailash Gehlot. They said the official residence of Kailash Gehlot was being used by one of the another accused who is basically probed, that is Vijay Nair as well, on which he has put out some of the clarification as well that he is correctly staying in his private residence, which is in the Vasant Kunj area, and the official bungalow. Audio दिया नहीं है. All right, many thanks to you, Nikhil, for bringing in all those inputs. So, as Nikhil was just now highlighting the fact that this is also to do with the fact that Kailash Gehlot was part of the GM that was drafted over the liquor policy. There's also a SIM card that has come in question because it's reported that Kailash Gehlot was handling a single SIM, but his international identity as far as the telephonic numbers are concerned has been reportedly changed thrice. So there are some loopholes that are being checked on by the Enforcement Directorate. In the meantime, let's also bring you political reactions that have come in from the Aam Aadmi Party as well. कोई तो रोजाना सम्मान देते रहते हैं आम आदमी पार्टी के लोगों को. कभी गोवा वालों को सम्मान दे देते हैं, कभी इनको दे देते हैं. रोजाना इनका सम्मान चलता है. बस एक बात देश जानना चाहता है कि जिनके ऊपर केवल आरोप हैं, कोई प्रमाण नहीं है, उनको तो रोजाना सम्मान देती है ईडी, सीबीआई. लेकिन जो सबूत आज सामने आया है, जिसके आरोपों के आधार पर ये सारी गिरफ्तारियां हो रही हैं, सम्मान आ रही हैं, शरद रेड्डी जिसको जमानत मिल गई, 60 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी ने उससे लिया. भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को सम्मान कब जाएगा? देखिए, हमारा पहले से मत था कि शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के कई सारे नेता मुख्यमंत्री समेत शामिल हैं और जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और कई परत दर परत खुलासे हो रहे हैं. तो मुझे लगता है अब शराब घोटाले में और नए किरदार सामने आएंगे. जिसने चोरी की है, जिसने भ्रष्टाचार किया है, उसे जवाब तो देना ही पड़ेगा. आज कैलाश गहलोत जी को बुलाया है, क्या पता कल मुझे बुलाएं, परसों सौरभ जी को बुलाएं. उसके बाद एक एक करके आम आदमी पार्टी के हर नेता, हर विधायक, हर कार्यकर्ता पर झूठे आरोप लगाकर उनको समन भी करेंगे, उनके घर रेड भी करेंगे, उनको गिरफ्तार भी करेंगे. ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है. कैलाश गहलोत बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी हैं इस सारे शराब घोटाले की,
क्योंकि जब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना GOM, जो अरविंद केजरीवाल जी ने 3 मंत्रियों का ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया जिन्होंने ये पॉलिसी को बनाया, उसमें कैलाश गहलोत एक थे, सत्येंद्र जैन दूसरे थे और मनीष सिसोदिया जी थे। तो एक बात बहुत स्पष्ट है, अब इस पूछताछ में सब कुछ सामने आ जाएगा किस तरह से वो टेलर मेड पॉलिसी जो अरविंद केजरीवाल जी के दोस्तों को लाभ देने के लिए बनाई गई थी, वो पॉलिसी कैलाश गहलोत जी तक कैसे आई, वो मीटिंग में पॉलिसी कैसे आई? क्या वही ये पॉलिसी थी जो अरविंद जी ने अरविंद केजरीवाल जी के घर मनीष सिसोदिया जी को थमाई थी? क्या ये वही पॉलिसी थी जो साउथ के लोगों ने ड्राफ्ट करी थी और फिर ये पॉलिसी ऑफिस तक पहुंचती है? तो सत्येंद्र जैन जी के बाद, मनीष सिसोदिया जी के बाद कैलाश गहलोत बहुत अहम कड़ी है और मैं ये मानता हूं अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। बड़ा स्पष्ट हो जाएगा कि पुख्ता सबूत जो हैं वो कैलाश गहलोत जी की बातचीत में निकलेंगे। Summons have been become a fashion in this government. Like sir has said कि जिस दिन जो है कांग्रेस को नोटिस ना आए उस दिन जो है हम परेशान हो जाते हैं कि क्यों नहीं नोटिस आया। ऐसे ही जो है जब तक ये समन ना भेजें तब तक इनका खाना हजम नहीं होता। इनको लगता है आज ये ढूंढते हैं पूरा दिन कि कल किसको समन भेजना है। तो इट हैज बिकम अ फैशन फॉर दिस गवर्नमेंट।